Hello guys, welcome back to Everyday Kargil. Today we are going to talk about a very important topic in zoology, that is the classification of phylum Protozoa. Different taxonomists have classified the phylum Protozoa into different superphyla and different classes. However, in the early days, the classification given by Hitchman and Storer, they classified the phylum Protozoa into two major subphylum, that is subphylum Plasmodroma and subphylum Coeliophora. These subphylums were further divided into class Mastigophora, Sarcodina, Sporozoa and Opellenata. The subphylum Coeliophora was further divided into two major classes, that is class Ciliata and class Suctoria. However, in 1964, the classification given by B.M. Honeyberg et al. That they classified the phylum Protozoa into four major subphylums, that is the subphylum Sarcomastigophora, Sporozoa, Nidiospora and Coeliophora. The subphylum Sarcomastigophora was further divided into three major superclasses, that is the class Mastigophora, the superclass Sarcodina and the superclass Opellenata. The subphylum Sporozoa was further divided into mainly three classes, that is the class Teleosporia, Toxoplasmia and Haplosporia. The superphylum Nidiospora was further divided into two major classes, that is class Myxosporodia and Microsporodia. The subphylum Coeliophora was further divided into two major classes, that is the class Ciliata and the class Suctoria. Let's talk about the subphylum Sarcomastigophora. The Sarcomastigophora was coming from a Greek word, that sarkos means fleshy, mastic means whip and phores means bearing. They are fleshy animals and they have small whip-like structure, that is the pseudopodia or flagella present on their body. They are very simple and primitive और इसका जो locomotion है वो pseudopodia या flagella की through होते हैं. The type of nutrition they possess is autotrophic as well as the heterotrophic. And the nuclei, one coin monomorphic nuclei जो है इनमें present होता है. अब ये जो है सुपर क्लास मास्टिगोफोरा जो है सब फाइलम मास्टिगोफोरा मेनली थ्री सुपर क्लासेस में डिवाइड होता है. द सुपर क्लास मास्टिगोफोरा आर फ्लैजिलेटा. It is further divided into two main classes, that is the Phytomastigophora and Zoomastigophora. The superclass Opellenata is further classified as a class Opellenata. The superclass Sarcodina further divided into three major classes, that is Rhizopodia, Actinopodia and Pyroplasmia. Let's talk about the superclass Mastigophora. Mastic means whip, phore means bearing, whip-like structure, that is the locomotory organ present on their body is a flagella. The body is covered by pellicles and the locomotory organs are flagella. वो जो लोकोमोशन है वो फ्लैजिला के थ्रू करते हैं, जैसे आप यहाँ पे यूग्लिना में देख रहे हो इसका जो है फ्लैजिला बहुत अच्छे से हमें दिख रहा है. रिप्रोडक्शन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये जो मास्टिगोफोरा में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और दे जनरली अकर्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. और इसके अंदर जो है क्लास जो है फाइटोमास्टिगोफोरा होते हैं. फाइटो मीन्स प्लांट लाइक रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, या इसमें जो है क्रोमोटोफोर प्रेजेंट होता है. इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है. इसका कुछ एग्जांपल है यूग्लिना है, वॉल्वेक्स है, काइलोमोडास है, नोक्टिल्यूका है, ये इसका जो है एग्जांपल है. अब इसका जो सेकंड क्लास है ज़ूमास्टिगोफोरा. ज़ू मीन्स एनिमल लाइक जो है ये जो क्लास ज़ूमास्टिगोफोरा में जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं इनका जो है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स प्रेजेंट इन दिस क्लास आर पैरासिटिक एंड नेचर. एंड ये जो अपना फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं. न्यूट्रिशन जो है इनका होलोजोइक होता है या स्पोरोजोइक होता है. इसका कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे लेशमानिया डिवोनी है, ट्रेपेनोसोमा
है या इसका जियार्डिया लाम्बा है या इसका जो है ट्राइकोमोनास विजाइनलिस है, ये जो है इसका एग्जाम्पल्स है। इसका जो है मास्टिक अमेबा जो है इसका कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मास्टिकोफोरा एंड सार्कोडीना है। लेशमेनिया डेवोनी से कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे काला आज़ार या डमडम फीवर होता है। ट्रिप्नोसोमा से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस जो है इसका स्पीशीज़ है। और जियार्डिया लाम्बा से जो है इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ये जो है ग्रांड ओल्ड मैन पैरासाइट या इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी कहते हैं इसका। और जो है नेक्स्ट जो है सुपर क्लास है ओपेलेनेटा। इसका जो है बाहर जो है पेलिकल प्रेजेंट होता है। इसके पास जो लोकोमोटरी आर्गन होता है वो है सीलिया होता है। सीलिया एक्ट एज ए लोकोमोटरी आर्गन इन द सुपर क्लास ओपेलेनेटा। और इसमें जो है बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जैसे आप इसमें दिख रहा है, और सारे जो न्यूक्लियस होते हैं मोनोमॉर्फिक इन नेचर होते हैं, इसका बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। न्यूट्रिशन जो इसका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और इसका जो है रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिशन जो डिवीजन होते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू होते हैं। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, इसमें जो है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सिंगेमी की प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें एक क्लासेस होते हैं ओपेलेनेटिया। इसका जो एक एग्जांपल है ओपेलिना जो है रेक्टल पैरासाइट इन फ्रॉक होता है। द नेक्स्ट सुपर क्लास इज सार्कोडीना। सार्कोडीना में जो है स्यूडोपोडिया इज प्रेजेंट एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन, और इसका जो है न्यूट्रिशन आर जनरल होलोजोइक और स्पोरोजोइक। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनली 3 classes. The class 1 is Rhizopodia. The Rhizopodia have different of स्यूडोपोडिया, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलेटोपोडिया, जिसमें एग्जांपल है एंटामेबा, हिस्टोलिटिका, अमेबा वगैरह है। और इसका जो है दूसरा क्लास है एक्टिनोपोडिया और तीसरा क्लास है पीरोप्लास्मिया। अब नेक्स्ट जो सुपर क्लास है सार्कोडीना, इसमें मेनली 2 क्लासेस होता है लाइक एक्टिनोपोडिया। जो एक्टिनोपोडिया का जो है बॉडी है स्फेरिकल शेप होता है। इनमें जो है एक्सोपोडिया प्रेजेंट होता है। एक्टिनोफाइरिस जो है इसका एग्जाम्पल है। और जो है तीसरा जो क्लास है सार्कोडीना में वो है पीरियोप्लास्मिया, स्मॉल पैरासाइट्स इन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट। इससे एक जो है डिजीज़ होता है वो है बेबेशिया कहते हैं, जिससे कैटल फीवर या रेड वाटर फीवर या हीमोग्लोबिन यूरिक फीवर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बेबेशिया है, ये जो प्रोटोजोन है, जनरली जो है आरबीसी को अटैक करते हैं। द नेक्स्ट सब फाइलम इज स्पोरोजोआ। दे आर एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट। जो है इस सब फाइलम में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो है एंडोपैरासाइट होते हैं, और उनका जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है उनमें एब्सेंट होता है। इनके जो ऊपर होता है थिक पेलिकल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब ये एंडोपैरासाइट होते हैं तो उनमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन में ये अगर पैरासाइट होगा तो ह्यूमन के जो इंटेस्टाइन या एनिमल के इंटेस्टाइन में जो स्टोमक में कुछ एसिड होते हैं उनसे बचने के लिए इनका जो है पेलिकल जो है बहुत ही थिक होता है। साइटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या साइटोफेज जो इसका मौत, और एनएस जो जिसे कहते हैं साइटोटोम जो है मौत होते हैं, और साइटोफेज जिसका एनएस होता है, और इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल जो है एब्सेंट होता है। इस सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मेन जो होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन अगर करेगा तो ये सिंगेमी के थ्रू होता है। दे जनरली possess spores and spore-like polar filaments. It is divided into mainly 3 classes, that is Telosporia, second class is Toxoplasma, and third class is Haplosporia. टीलियोस्पोरा का एग्जाम्पल है हम प्लास्मोडियम जो मलेरिया कॉज करते हैं, या दूसरा जो है मोनोसिस्ट एंडोपैरासाइट जो होते हैं सेमिनल वेजिकल ऑफ अर्थवर्म में, और दूसरा टोक्सोप्लाज्मिया में स्पोर जो है एब्सेंट होता है। इसका जो एग्जांपल होता है टोक्सोप्लाज्मा होता है। टोक्सोप्लाज्मा जनरली हमें केड वगैरह से हम डिजीज़ जो है वो एक जूनोटिक डिजीज़ होता है, केड वगैरह से ह्यूमन को भी ये कम्युनिकेट हो सकता है। पैलोस्पोरिया का एग्जांपल है इथियोस्पोरोडियम होता है। और नेक्स्ट जो है सब फाइलम है स्पोरोजोआ है। नेक्स्ट जो सब फाइलम है वो नीडोस्पोरिया है। नीडोस्पोरा में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब के सब दे ऑल हैव
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उनमें एब्सेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो भी एब्सेंट होता है। स्पोरुलेशन हैपन्स इन द लाइफ साइकिल। जो स्पोर कैप्सूल में पोलर फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनली टू क्लासेस, दैट इज मिक्सोस्पोरोडिया एंड माइक्रोस्पोरोडिया। मिक्सोस्पोरोडिया में जो है स्पोर जो है बहुत ही लार्ज होते हैं और माइक्रो में स्मॉल स्पोर्स होता है, और जो है इनका स्पोर्स में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो माइक्रोस्पोरोडिया होते हैं उनमें सिर्फ जो है सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। इसका एग्जांपल है नोसीमा, जो एंडोपेरासाइट होते हैं सिलिक वर्म में, और यह पैपरिन करके एक डिजीज़ जो है कॉज करते हैं। और दूसरा जो है मिक्सोस्पोरोडिया में जो एग्जांपल है मिक्सिडियम। द नेक्स्ट सब फाइलम इज सीलियोफोरा, जो है ये कम्प्लेक्स प्रोटोजोन्स जो है इस सब फाइलम में प्रेजेंट होता है। इनकी जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है सीलिया होता है। न्यूक्लियस इनका डायमॉर्फिक होते हैं, कभी मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं, कभी माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। इनकी जो ओटर पेलिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ये बाइनरी फिशन के थ्रू करते हैं। एंड द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशंस। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ओनली वन क्लास, दैट इज़ क्लास सीलिएटा। ये जो क्लास सीलिएटा में एनिमल्स होता है इनमें सीलिया जो है एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन इसका जो है होलोजोइक है। डायमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे होते हैं, और माइक्रो न्यूक्लियस जो होते हैं सोमेटिक फंक्शन के लिए होता है। टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। साइटोटोम एंड साइटोफेज जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो मोथ और अनस जो है। और इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, स्लीपर एनिमिक्यूल्स भी जो से कहते हैं क्योंकि इसका शेप जो है स्लीपर शेप होता है। वॉटिसीला होते हैं, बेल एनिमिक्यूल ये एक बेल की तरह होता है। और नेक्स्ट जो है इसमें ब्लेंटेरियम होता है, जो कोलोन वगैरह में जो है पैरासाइटिक के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तौर पर वहाँ पे रहते हैं। सो द न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो कहते हैं, जो किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं, और ये सब किंगडम प्रोटोजोआ कहते हैं, जिसको क्लासीफाई इनटू 7 फाइलम, जैसे सार्कोमास्टिकोफोरा, ये जो सीलियोफोरा तक 7 फाइलम ये डिवाइड किया गया है। ये जो डिवाइड किया था द कमेटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ protozoologist. Thank you for watching. If you like the lecture, please don't forget to subscribe and share.